Hello, dear students. Today I am going to solve chapter number 12, simple interest, and I have solved up to question number 15 of exercise 12. Now I am going to solve some other problems. Question number 17. Question number 17. A sum of money invested at 8% per annum amounts rupees 12,122 in 2 years. What will it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum? What will it amount? तो इस sum of money invested 8% per annum amounts to इतना in 2 years. What will it amount in 2 years 8 months and 9%? आपको ये बताना है, सम नहीं दिया है, अमाउंट दिया गया है, मीन्स अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इज गिवन रुपीज 12,120 and time is given 2 years, time equal to 2 years, and the rate equal to 8% per annum, 8% per annum. Then at first हम लोग इसका प्रिंसिपल निकालेंगे और प्रिंसिपल निकालने के बाद जो प्रिंसिपल आएगा फिर बताना है हमको नेक्स्ट इसका 2 पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट विल इट अमाउंट टू in 2 years 8 months at 9% per annum. तो पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे. लेट द प्रिंसिपल बी P. Let the principal be P. Then SI equal to A minus P, and it is given 12,122 minus P. Now applying formula SI equal to P into R into T upon 100. SI is 12,122 minus P, sorry, is equal to P into R is given 8% per annum and T is also given 2 upon 100, 50 and 2 4 ja and 225, means it is equal to 4P upon 25. By क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग. 12,122 into 25 minus 25P, it is equal to 4P. Transpose this side and it will be equal to 1,122 into 25, it is equal to 29P. Therefore P equal to 1,2122 into 25 upon 29. 29 से इसको डिवाइड करके चेक करते हैं हम लोग. 1,2129 4 जा yes
4 9 जा 36, 3 and 4 2 जा 8, 3 11. 11 minus 6 5 2 1 1. 29 12 minus 9 3 and 4 minus 2 2. I think 8 1. 8 9 जा 72 7 and 8 2 जा 16 and 7 23. 4 1 8. It is equal to 25 8 जा 200 and 25 and 20 45 4 and 25 4 जा 100 104 104. ये हमको प्रिंसिपल मालूम है. अगेन इसका सेकेंड पार्ट है. नाउ टाइम इक्वल टू 2 years 8 months. 2 years and 8 months. 8 months. इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, मंथ को चेंज कर लेंगे ईयर में. तो 2 plus 8 upon 12 means it is equal to 2 plus 3 upon 4 or it is equal to 11 upon 4 years and rate equal to 9% per annum. Then SI equal to P into R into T upon 100. Here principal is 10,450. 10,450 into R means 9 and time is 11 upon 4. 100 into 4. 0 0 cancel. 5 2 जा 10, 5 9 जा. अब ये कैंसिल नहीं होंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. 209 में 99 का 299. 9 9 जा 81, 9 2 जा 80, 9 9 जा 81 and 9 2 जा 80. 1 9 0. 20,691. 20,691 divided by 8. 8 से अगर इसको लोग डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 4 and 8 5 जा 40, 6, 8 8 जा 64, 5, 8 6 जा 48, 3, 8 6 जा 48. Then it will be 1 and 8 1 जा 8. डिवाइड कर लेते हैं भाई, हो सके मिस्टेक बस. 26 1. 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, sorry 64, 8 6 जा 48, 3 and 8 3 जा 24, 375, 375. Now amount equal to P plus SI. Now principal is 10,450 plus 2,586.375 and it is equal to 6 8 5 13 5 4 9 10 213 rupees 13,036.375. I would like to check answer. Question number 17. 12 है question number 17. 12,958. सो कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक है, चेक करते हैं इसको हम.
12,122, ये तो करेक्ट है। 2 years and 8%, 8%, yes sir, 54, 25 का मल्टीप्लाई हम लोग किए थे इसका, यस 25 की 29, यहाँ तक तो सही है। 2 years and 8 months, यहाँ गलत है। 4 2 जा 8, टाइम गलत है। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा, यहीं से गलत है क्वेश्चन। Then it will be 3 2 जा 6 2 8, 8/3 years। इसी टाइम के गलत होने से हम लोग का सॉल्यूशन आंसर जो है गलत आया है। एंड रेट इक्वल टू 9%, रेट इक्वल टू 9% पर एनम। सो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। P इक्वल टू 10,450 into R means 9 and time means 8/3, 100 into 3, 3 3 is 9, 4 2 is 8, 25 and 5 5 is 5 2 is 10, 5 9 is 45 and 0 and 5 4 is 5 1 जा 5 8 जा, it is equal to 3 2 जा 6, तो 6 8 जा 48 and 6 4 10 and 6 4 जा 24 25। so amount equal to P plus SI and principal equal to rupees 10,450 plus 2,508, which is equal to rupees 8 0 sorry 8 5 459 to 12,958। This is our answer। वहाँ टाइम हम लोग का गलत हो गया था, इस वजह से आंसर सही नहीं आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। (22 and 23 both are same question। ये 22 और 23 एक तरह के क्वेश्चन है, तो 23 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a sum of money late and simple interest amount to rupees 4,745 in 3 years and to rupees 5,475 in 5 years. Find the sum and the rate percent per annum. Let the principal and the rate be P and R. P and R. Then
amount in 5 years, amount in 5 years is equal to 5,475। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं P प्लस SI in 5 years, it is equal to rupees 5,475। Similarly, P plus means लिख सकते हैं amount in 3 years, amount in 3 years, it is equal to P plus SI in 3 years is equal to rupees 4,745। 4,745 ये हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, केवल एसआई ही चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे एसआई बढ़ता चला जाता है, इसलिए पी जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होगा। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, ये पी से पी कैंसिल हो गया। देन एसआई इन 2 years, एसआई इन 2 years इट इज इक्वल टू रुपीज 0, 3 and 7, rupees 730। So SI in 1 year, SI in 1 year, it is equal to rupees 730 upon 2, it is equal to rupees 365। मीन्स 1 year का SI हमको पता हो गया, तो हमको एसआई पता हो गया। और अगर 2 years का, अगर हम 3 years का एसआई निकाल लेते हैं, एसआई 3 years, एसआई 3 years, then it is equal to rupees 365 into 3, it is equal to rupees 3 5 is 15, 3 6 is 19, on 3 3 are 9 over 10, रुपीज 1095। 3 years का हमको एसआई पता हो गया और 3 years का हमको अमाउंट पता है। देन P इक्वल टू 4745 माइनस 1095। अगर 5 year का एसआई निकाल के इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको प्रिंसिपल वही आएगा, या इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। सो 14 minus 5 9 and 4 and also 49 9 minus 5 and here will be 6 and 4 minus 1 3। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया 3659। चेक करते हैं 23 3650 3650 ये 4745 उल्टा लिखा गया है पर 45, फिर गलत होता 0 and 14 minus 9 5 and 6 and 4 minus 1 3 3650। Yes sir। Now rate equal to SI into 100 upon P into T। SI 3 years का हम निकाले यहाँ पर 3 years का।
then it will be 1095 into 100 upon प्रिंसिपल अभी हम लोग का निकला है 3650 into टाइम 3 years, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 365 आया है, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5, then it is equal to 10% per annum। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। पहले जो है अमाउंट लिख लेंगे और जो लार्जर अमाउंट होगा उसमें से स्मॉलर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका प्रिंसिपल निकलेगा, एसआई निकलेगा, एसआई से फिर प्रिंसिपल निकाल लेंगे और प्रिंसिपल निकालने के बाद तब हम लोग रेट निकालेंगे। और इस तरह से आप ये 12A और 12B सॉल्व करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो यू में आस्क, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक आध दो क्वेश्चन बताने का और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। थैंक यू।